Okay. As you can see on the screen, we have divided the globe into three parts to understand the IATA geography in well manner, which we called Area 1, Area 2, and Area 3. You can see the lines over here so that you can understand the areas. This is the Area 1. Okay. This is Area 1 from this line to this line. This is Area 2, and from here to there, and this is the Area 3. We also call these areas as a TC. TC 1, TC 2, and TC 3. Okay. Here TC defined as the traffic conference. Okay. So here, according to the traffic of the air transport, they have divided the three parts. In first part, we include, which is Area 1 or TC1, we include North America, Central America, and South America. All the three regions we include in the TC1, including all the three American region. We also include the Caribbean. Okay, Caribbean region, which are the small island in this area. Okay, we have already learned or understand all these things with the help of the map in our previous sessions. Okay, so all these areas or all these regions are consist or exist in the area 1 or TC1. Next, move further to the area 2, which we also call the TC2. In this region we include entire Europe part. Okay, entire Europe and entire Africa, and we also include the Middle East part. Okay, so Middle East also in the area 2 or TC2. Mostly Europe and Africa and the Middle East part include or consist in this area 2 region. Next, the third region is we call the area 3 or TC3. In this IATA geographical region, we include the Asia part. Okay, the Far East in the sense we have already discussed the Japan and other countries, and Australia, entire Australia we include in this area. New Zealand also include, and Pacific Island. Pacific Island, all these islands. So all these island we include in the Pacific, all the Pacific region, the island which we have already learned in our previous class, जिसमें हमने पढ़ा था ओशियनिक रीजन जो है हमारे पैसिफिक रीजन में आ रहे थे, ठीक है, उनको हम इंक्लूड करते हैं TC3 में या फिर एरिया 3. तो अगर हम आइटा ज्योग्राफी की बात करेंगे, okay, as far as the concern of the IATA geography, IATA geography, to understand the IATA geography, we divided the all the regions into three parts to understand the IATA geography in a well manner. TC1, TC2, TC3, or we can also say that A1 or Area 1, Area 2, and Area 3. Okay, so these three regions or three areas will help us to understand the IATA geography in well manner. So whenever we called or whenever we talk about the IATA geography, we divided the three parts, and we see in similar way we understand the all the codes, airport codes, okay, IATA codes in the same manner. Okay, अब हम इसके जो codes हैं वो आपको पता है कि 3 letter code होते हैं, वो according to region, ठीक है, ये region wise हमने देखे हैं, फिर हम उनके साथ उसको associate करते हैं. तो when we talk about the IATA geography, we talk always the three parts. ये इसका मेन कंसेप्ट था आइटा ज्योग्राफी का, ठीक है, जैसे हमने बाकी ज्योग्राफी भी रीजन वाइज देखी थी उसी तरीके से आइटा ज्योग्राफी भी हमने इसी तरह देखी, ठीक है. नीचे यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है, जो आपको रेड में दिख रहा होगा, ये फर्स्ट एरिया, सेकंड एरिया, थर्ड एरिया. तो इसमें इसी अकॉर्डिंग आप इसको कंट्री में भी रख सकते हैं. अगर इसमें फार ईस्ट की कंट्री एरिया 3 है तो फार ईस्ट एशिया आ रहा है, तो इंडिया भी हमारा जो है पार्ट वो एरिया 3 का पार्ट है, ठीक है. इंडिया है, जापान है, जो साउथ ईस्टर्न कंट्री है हमारी, मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ये सभी हमारी
इसी का पार्ट है एरिया 3 का। अगर हम यूरोप 2 की बात करेंगे, अगर एरिया 2 की बात करेंगे तो उसमें सभी यूरोपियन कंट्री, चाहे फ्रांस हो, ग्रीस, इटली, स्पेन, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, यूके, यूनाइटेड किंगडम, okay, and all these African countries called Ethiopia, Somalia, Morocco, South Africa, Mauritius, all these countries, and including the Middle East part. Okay, in Middle East part, Yemen and the Philip, Israel, all these countries is also consist in the area 2. And if we are talking about the area 1, तो area 1 all these American countries, all three region including Caribbean island, जो हमारे छोटे छोटे islands थे उनको मिला के। तो इसमें हमारे आपके ग्रीनलैंड है, आपका नॉर्थ अमेरिका में जितनी भी यूएसए है, मैक्सिको, कनाडा, पनामा, अर्जेंटीना, ठीक है, पेरू, उरुग्वे, वेनेजुएला, all these country will comes under area 1 region. So this is the easiest way to understand the IATA geography. ठीक है, अब आपको इसमें शेडिंग वे में दिख रहा होगा area 1, area 2 and area 3. area 1 comprises what we call the western hemisphere. जो एरिया है हमारा 1 है वो वेस्टर्न साइड में है, और जो एरिया 2 एंड 3 है वो हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आते हैं। ठीक है, अगर हम इसको इक्वेटर से डिवाइड करेंगे, इसमें इक्वेटर तो नहीं होता, लेकिन हमारा अगर हम वैसे लॉन्गिट्यूड से डिवाइड करेंगे तो प्राइम मेरिडियन जो होता है, ठीक है, तो उससे हम डिवाइड करेंगे तो ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आएगा, और ये जो हमारा एशिया वाला पार्ट है वो ईस्टर्न, जो एरिया 2 एंड 3 है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, और जो एरिया 1 है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। In this way we can understand the IATA geography. This is the basic for the IATA geography. सर सर न्यूजीलैंड के Apart from that, we include all these IATA codes which consist in these regions, area 1, area 2 and area 3. ठीक है, जिसमें आपका area 1, area 2, अगर area 3 की बात करेंगे तो वहां पर all these cities which are most popular in terms of the travel and tourism, not in travel and tourism, all the cities which consisting in these regions, you have to learn all these codes for the IATA as you have learned already for the Indian region. तो आईटा का ओवरव्यू लेने के लिए सबसे पहला तो ये इसका लोगो है। ठीक है, आईटा का सीधे सीधे मतलब होता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। दिस इज द ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन विच इज इंटरनेशनली recognized and it internationally handle the all these air transport related things in international domain. Okay, इस ये 19 अप्रैल 1945 को इसको बनाया गया था, और इसका पर्पस था टू रिप्रेजेंट, लीड एंड सर्व एयरलाइन इंडस्ट्री। ओके, अभी तक इसमें 230 मेंबर्स हैं, ये इसकी वेबसाइट्स है। इसके अगर हम बात करें, इसका जो फाउंडेशन है वो हवाना से शुरू हुआ था अप्रैल 1945 से। ओके, डेट थी इसकी 19 अप्रैल। ओके, एंड फाउंडेड इन हेग इन 1990, द ईयर वर्ल्ड फर्स्ट इंटरनेशनल शेड्यूल सर्विसेज। At its founding, IATA has 57 members from 31 nations, mostly in Europe and North America. शुरुआत जब इसकी हुई थी तो उस वक्त इसमें सिर्फ 57 मेंबर्स थे, जो 31 नेशंस, जो 31 कंट्रीज से 57 मेंबर्स थे। ठीक है, इसमें वो सभी मेंबर्स होते हैं जो एयरलाइंस हैं, ठीक है, और जो उसकी कंट्रीज हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं। इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, ठीक है, इन्होंने ये मेंशन किया कि वर्ल्ड वॉर के बाद ये शुरू किया गया था। ठीक है, इसके जो बेसिक ऑब्जेक्टिव हैं, टू प्रमोट सेफ एंड रेगुलर एंड इकोनॉमिक एयरपोर्ट एयर ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल द पीपल और इन फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल, एंड द सेकंड ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड द असिस्टेंट अमंग द एयर ट्रांसपोर्ट एंटरप्राइजेज टू एंगेज डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसफर सर्विसेज। ओके, मतलब सभी का एक एसोसिएशन बना के उनको एंगेज रखना अपने एसोसिएशन के साथ, और उनको असिस्टेंट प्रोवाइड करना, जितने भी इंटरनेशनली या फिर जितने भी एंटरप्राइजेज इसमें काम कर रहे हैं, कोऑपरेट करना, ठीक है, सभी के साथ, और इंटरनेशनल एविएशन का ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वेल कॉर्पोरेशन के साथ उनको चलाना, टू अचीव दी ऑल दी रिकग्निशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ऑल एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड वाइड, एंड टू प्रोवाइड अ कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर दी ऑल दीज ट्रैवल एजेंट एंड दी एजेंसीज। ओके, अगर ये आईटा नहीं होता तो आप एक जगह से टिकट बुक नहीं कर पाते, आपको अलग अलग तरीके से
हर कंट्री अपना अलग रूल रेगुलेशन लगाती, जैसे वीज़ा में होता है, ठीक है, वैसे ही करना होता। तो इन सभी को ईज करने के लिए दे हैव मेक द एसोसिएशंस। अब ये ट्रैफिक कॉन्फ्रेंस मैंने आपको बताया था, आर्टा ट्रैफिक कॉन्फ्रेंस, या और उसको हम एरिया भी बोलते हैं, ठीक है, आर्टा TCA, आर्टा ट्रैफिक, जो TCA का मतलब हो गया ट्रैफिक कॉन्फ्रेंस एरियाज। ओके, हमने इसको बता दिया। TCA में हमारा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका आइलैंड्स हैं, बर्मुडा, वेस्ट इंडीज, कैरेबियन आइलैंड, हवाई आइलैंड। TC2 में हमारे ऑल यूरोप, अफ्रीका आइलैंड, और ये आइसलैंड वाला पार्ट है। एशिया का जो मिडल ईस्ट वाला पार्ट है वो, ठीक है, वेस्ट ऑफ ईरान को मिला के। TC3 में पूरा एशिया है हमारा, ठीक है, और हमारा न्यूजीलैंड है, लेकिन हम उसको छोड़ देंगे जो हमारे एरिया 2 में आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि न्यूजीलैंड इसमें आएगा हमारा, और बाकी जो पैसिफिक ओशियंस हैं जो एरिया 1 में नहीं है वो एरिया 3 में आएंगे।